Hello everyone, welcome back to the channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to Strait of Hormuz. So first point is the Strait of Hormuz is a narrow maritime passage connecting the Persian Gulf to the Arabian Sea, making it one of the most strategically important shipping routes in the world. तो जो स्ट्रेट हार्मोज एक नैरो मैरीटाइम पैसेज है जो कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ टू द अरेबियन सी, जो बनाता है इसको वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट शिपिंग रूट इन द वर्ल्ड. Second point, it lies between Iran in the north and Oman and United Arab Emirates in the south, acting as a gateway for Gulf oil export. तो इसकी पोजीशन कहाँ ये लाई करता है बिटवीन नॉर्थ मतलब बिटवीन ईरान इन अ नॉर्थ और ओमान और यूनाइटेड अरब इन अ साउथ, जो एक्ट करता है एज अ गेटवे फॉर गल्फ ऑयल एक्सपोर्ट्स. Third point, around 20 to 21% of the world's petroleum liquids consumption passes through this strait daily, making it a global energy choke point important for countries like Saudi Arabia and Iraq. मतलब 20 से 21% जो वर्ल्ड्स का पेट्रोलियम लिक्विड कंजम्पशन होता है ये इसी रूट से पास होता है रेगुलरली, जो इसको बनाता है ग्लोबल एनर्जी चोक पॉइंट इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्री लाइक सऊदी अरेबिया और इराक. Fourth point, the strait is only about 33 kilometers wide at its narrowest point, and the actual shipping lane in each direction are just a few kilometers wide, increasing the risk of disruption during conflict. तो जो स्ट्रेट है ये केवल ओनली अबाउट 33 किलोमीटर वाइड है इट्स नैरोएस्ट पॉइंट, और जो एक्चुअल शिपिंग लेन्स है ईच डायरेक्शन वो जस्ट है फ्यू किलोमीटर वाइड, जो इंक्रीज कर रहा है रिस्क ऑफ डिसरप्शन ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट. 5 point, any military tension or blockade threat in this region can directly impact global oil prices, shipping, insurance and energy security, which is why major powers closely monitor the area. कोई भी मिलिट्री टेंशन या ब्लॉकेड होता है इन दिस रीजन, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में, शिपिंग इंश्योरेंस में और एनर्जी सिक्योरिटी में. इसीलिए एक रीज़न है जो जितनी भी मेजर पावर है क्लोजली मॉनिटर करती रहती हैं इस एरिया को. 6 point, recent geopolitical tension in the Gulf, including naval confrontations and tanker seizures linked to disputes involving Iran and Western countries, have again highlighted the vulnerability of this route. जो recent geopolitical tension है गल्फ में, इंक्लूडिंग नेवल कन्फ्रंटेशंस और टैंकर सीजन, ये लिंक करता है डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज़ को, जो दोबारा से हाईलाइट कर रहा है वल्नरेबिलिटी ऑफ दिस route. Second point, the United States and allied navies regularly patrol the region to ensure freedom of navigation and safe energy supply routes, making the strait a constant focus of global strategic policy. तो यूनाइटेड स्टेट्स और उसके जो एलीड नेवीज़ हैं वो रेगुलरली पेट्रोल करती हैं इस रीजन को इंश्योर करने के लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सेफ एनर्जी सप्लाई रूट, जो बनाती हैं स्ट्रेट ऑफ कांस्टेंट मतलब लगातार फोकस होता है ऑफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़. 8 point, for India and other energy importing countries, stability in this passage is crucial because a large share of crude oil imports from the Gulf region passes through this route, affecting domestic fuel prices and economic stability. इंडिया और जितने भी अदर एनर्जी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो ऑयल को इंपोर्ट करती हैं, स्टेबिलिटी मतलब इस रीजन में स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अ लार्ज शेयर ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है इसी रीजन से, इसी स्टेट से गल्फ रीजन पासिस थ्रू दिस रूट, जो अफेक्ट कर सकता है डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को. And the another topic is the Privileges Committee. So first point is the Privileges Committee of the Parliament of India examine cases where the right of privileges of MPs are violated or when there is a contempt of the house. जो प्रिविलेज कमेटी होती है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की, वो क्या करती है, वो एग्जामिन करती है केसेस जहाँ पर राइट्स और प्रिविलेजेस ऑफ MPs आर वायलेटेड और वेयर व्हेन देयर इज़ अ कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस.
And parliamentary privileges in India are mainly defined under Article 105 for Parliament and Article 194 for State Legislature of the Constitution of India. जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन इंडिया है वो मेनली डिफाइंड है अंडर आर्टिकल 105, मतलब पार्लियामेंट की जो प्रिविलेजेस कमेटी है वो डिफाइंड करती है आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 फॉर स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Point. The committee investigate complaints referred by the Speaker of the Lok Sabha or the Chairman of the Rajya Sabha and then submit a report with recommendations. तो कमेटी है वो इन्वेस्टिगेट करती है कंप्लेंट जो रिफर्ड बाय होती है स्पीकर ऑफ द लोकसभा और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और इसके बाद क्या होती है वो सबमिट करती है रिपोर्ट with some recommendations. Point. Its main purpose is to protect the freedom, authority and dignity of the legislature, ensuring that MPs can perform their duties without outside pressure or obstruction. तो प्रिविलेजेस कमेटी का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि वो प्रोटेक्ट करती है फ्रीडम, अथॉरिटी और डिग्निटी ऑफ द लेजिस्लेचर और इंश्योर करती है जो एमपीज़ हैं वो कैन परफॉर्म कर सके अपनी ड्यूटीज़ विदाउट any outside pressure or obstructions. Privileges include freedom of speech in parliament, immunity from legal action for statement made in the house and protection from arrest in certain civil cases during a सेशन. तो जो प्रिविलेजेस कमेटी होती है वो क्या इंक्लूड करती है, वो क्या मतलब आप एमपीज़ को प्रोवाइड करती है. एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, इम्यूनिटी करती है फ्रॉम लीगल एक्शन फॉर स्टेटमेंट मेड इन द हाउस और प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम अरेस्ट इन सर्टेन सिविल केसेस ड्यूरिंग अ सेशन. मान लो सेशन चल रहा है तो आप उस ड्यूरेशन में आप किसी भी एमपीज़ को या लेजिस्लेटर को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं. 6. Point. If a breach of privilege or contempt is proved, the House may punish the offender through admonition, reprimand, suspension or even imprisonment in rare cases. अगर breach of privileges और contempt अगर प्रूव हो गया तो जो हाउस है वो क्या क्या कर सकती है, पनिश कर सकती है ऑफेंडर को थ्रू एडमोनिशन, उसको रेप्रीमैंड कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है और इवन इम्प्रिजनमेंट इन रेयर केसेस. Point. Recent parliamentary discussion have highlighted privilege notices filed against political leaders and media comments, bringing attention again to how these committees function in maintaining legislative discipline. जो रिसेंटली पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा है उन्होंने ये हाईलाइटेड किया है जो प्रिविलेजेस नोटिसेस होते हैं जो फाइल होती हैं अगेंस्ट पॉलिटिकल लीडर्स और मीडिया कमेंट्स, वो मतलब अटेंशन ला रही हैं अगेन टू हाउ दीज कमेटीज फंक्शन इन मेंटेनिंग लेजिस्लेटिव डिसिप्लिन. 8. Point. For India and other energy importing countries, stability in this passage is crucial because a large share of crude oil imports from the Gulf region passes through this route, affecting domestic fuel prices and economic stability. इंडिया और जितनी भी अदर एनर्जी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो ऑयल को इंपोर्ट करती हैं, स्टेबिलिटी मतलब इस रीजन में स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अ लार्ज शेयर ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है इसी रीजन से, इसी स्टेट से गल्फ रीजन पासिस थ्रू दिस रूट जो अफेक्ट कर सकता है डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को.